हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चार्टर्ड मशवरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? अब तक की हमारी सीरीज में जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। इन बेसिक्स वी हैव कवर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, वी हैव कवर्ड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट. In some examples, we have also covered journal entries, ledger posting. Also, we have made one balance sheet. So ultimately, what I want to say is that ki we have taken a brief overview of what the accounting is. We have taken a basic, brief overview ki what is the accounting is. What is the real process of accounting? As I have already discussed, that it starts from the very basic function of recording, which is made with the help of journal entries. Then it's posting into ledger accounts. Then that posting to financial preparation and presentation of financial statements, including profit and loss, balance sheet, trial balance, all are their part. So what I want to say, कि we have taken a brief overview of the term accountancy. Now, in today's lecture, I'm going to introduce more deeply you people with the journal entries. That what the journal entries are and how actually they are being drawn. अगर आपने अभी तक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाए और उस सीरीज को देख लें, क्योंकि बिना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझे हम जर्नल एंट्रीज को नहीं कर पाएंगे. ये लेक्चर हमारे स्पेसिफिक डिवोट रहेगा जर्नल एंट्रीज की तरफ. तो जिसको भी जर्नल एंट्रीज में दिक्कत आती हैं, ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, या छोटे छोटे ऐसे जर्नल एंट्री के फीचर जो हमें शायद अभी तक नहीं पता होंगे, वो भी आपको इसमें जो है देखने को मिल जाएंगे. So, shall we start now? Yes, it's from journal, chapter number 8 from your T.S. Grawal, and here we go. Chapter number 8, 8.1, 8.2. They have said that journal is called the book of original entry. Why it is called the book of original entry? Because as the transaction takes place, जैसे ही transaction हुआ, the very first step of accounting says that record the transaction. So originally the transactions is recorded in journal entries. Whenever you get a word like original, primary, you should face towards journal entries. Why? Because any transaction whenever occurs in the very original form, it is being recorded in the form of journal entries. So journal entries is the very original, what? It's a book of original entry. Why? Because all transactions are originally recorded in journal entries. Done. Then after recording journal entries, after recording original entries या books of original entry को record करने के बाद we switch to ledger account. यानी कि लेजर अकाउंट क्या है? एक तरीके का, एक जैसे बोलते हैं ना कि वो स्ट्रक्चर के बाद वाला काम है. इट इज अ काइंड ऑफ फिनिशिंग, यानी कि इन विच वी डू व्हाट, हम क्या करते हैं, जो जर्नल में जो चीजें रिकॉर्ड हुई हैं हम उनको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में. यानी कि वी हैव टू टेक सम आइडिया अबाउट द अकाउंटिंग पोजीशन, वी शैल हैव टू शिफ्ट ourselves to ledgers. Why? Because suppose we have to take what is the balance of cash. So if I provide you with the original entry book with the journal entry book, you will find it. ये आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, ये तो बहुत सारी इसमें कैश की भी एंट्रीज आ रही हैं, इसमें बैंक की भी आ रही हैं, इसमें अदर देन कैश भी आ रही है, सारा सब कुछ आ रहा है. तो हाउ वी कुड कंक्लूड दैट दिस इज द पर्टिकुलर बैलेंस ऑफ कैश? So for that we have to switch ourselves to the लेजर अकाउंट. हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा? हमें लेजर अकाउंट की तरफ जाना पड़ेगा, जहां स्पेसिफिक हम कैश का लेजर उठाएंगे और देखेंगे कि हाँ भाई कैश में पूरे साल में इतनी रिसीट्स आई हैं, इतने पेमेंट्स हुए हैं, दिस इज द अल्टीमेट बैलेंस. और इफ एनी ओवरड्राफ्ट इज देयर देन दैट आल्सो विल बी शोन इन क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. तो कहने का मतलब यह है, what I want to say, when you have to draw some conclusion, or when you have to fetch some balance, जर्नल एंट्री वहां पे आपका कोई मदद नहीं करेगी. Why? Because it is a kind of recorded transactions. It is not, ये ऐसा प्रोसेस्ड नहीं है, ये बेसिकली ओरिजिनल है. Here you have recorded all the transactions. यहाँ पे आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं है. फॉर प्रोसेस फॉर्म यू हैव टू मूव टूवर्ड्स प्रिंसिपल बुक्स. जैसे प्रिंसिपल बुक का नाम दिया गया है, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी लेजर होती है. तो यानी कि दो टर्म हमें मिले हैं अभी तक कुल मिला के.
Number one, it's books of ओरिजिनल एंट्री, जो कि आपकी जर्नल है. एंड नंबर टू, प्रिंसिपल बुक, जो आपकी क्या है, जो आपकी लेजर है. तो अल्टीमेटली जो बेसिक डिफरेंस भी एक तरीके से हमने पता कर लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि सब ओरिजिनल एंट्री हमारी जर्नल है और प्रिंसिपल बुक क्या है, हमारी लेजर है. इसको एक छोटा सा एग्जांपल लें आप. जब आप स्कूल जाते हैं तो एक ऐसा गेट होता है एंट्रेंस का, स्कूल में दाखिल होने का, स्कूल में आने का, जहां पे क्लास फर्स्ट का बच्चा भी वहीं से अंदर आता है, क्लास सेकंड का बच्चा भी वहीं से अंदर आता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इवन क्लास 12 तक का बच्चा भी उसी गेट से अंदर आता है. सो इफ अगर मैं वहां पे खड़ा हो जाऊं गेट पे और मैं चाहूं कि मुझे 12th का बच्चा या मुझे 6th 7th का बच्चे को मैं पकड़ लूं, तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि इतनी भीड़ होगी वहां पे हर टाइप का बच्चा है, क्लास नर्सरी टू लेकर के क्लास 12 तक का. तो मुझे डिफिकल्टी होगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा स्टूडेंट 6th 7th और 8th क्लास में पढ़ रहा है. नाउ अब वो रिकॉर्डिंग, वो क्या था, एक रिकॉर्डिंग फेज था जहां पे क्या हो रहा था, जहां पे पब्लिक या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे थे, आ रहे थे स्कूल की तरफ. अब वो गेट क्रॉस हो गया. एज सुन एज दैट गेट क्रॉसेस, दे बाइफरकेट, वो क्या हो गया, वो क्लासिफाई हो गए इन देयर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस. इन क्लास रूम, इन रूम नंबर 3 सपोज you will find class 6 roll number. In room number 6th, in room number 6 7 8 you find the students of class 12th. For room number 12 13 you will find the student of class 7th और 8th और 9th. दो अब मुझे क्या करना, रिकॉर्डिंग फेज पे मुझे कुछ कंक्लूजन नहीं मिल पाया कि वो बच्चे 9th के थे, 10th के थे, 11th के थे, 12th के थे. बट एज सुन एज दे आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू देयर सेक्शंस, मेरे लिए ये आसानी हो गई कि हाँ भाई अब मुझे क्लास 8th वाले बच्चे को देखना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा रूम नंबर देखूंगा कि हाँ भाई रूम नंबर 8 में कौन से बच्चे बैठे हैं, क्लास 7th के बच्चे बैठे हैं, रूम नंबर 12 में कौन से बच्चे बैठे हैं, 8 के बच्चे. तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उनके पास चला जाऊंगा. बिल्कुल इसी तरीके से जर्नल है. रिकॉर्डिंग फेज था वो गेट स्कूल का, जहां पे सब बच्चे इकट्ठा आए और उनको जो है हम वहां पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए. बट दैट वाज द फेज ऑफ रिकॉर्डिंग. व्हेन यू हैव टू मेक सम कंक्लूजन और वी हैव टू फेच सम डिटेल्स, वी गो टू द लेजर अकाउंट्स इन देयर डिफरेंट सेक्शन एंड वी कंक्लूड दैट यस इन रूम नंबर 6 we have 7 class of students, in room number 12 we have 8th class of students. तो मुझे क्या हुआ, मुझे आसानी हो गई किसकी वजह से, उस क्लासिफिकेशन की वजह से. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन वो लेजर है जो प्रिंसिपल बुक का भी आपका काम करता है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेजर और जर्नल के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जर्नल इन्होंने कहा कि जर्नल की डेफिनेशन है, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are first recorded in a chronological order from the accounting vouchers that are prepared on the basis of source document, that is cash memo, invoice, purchase bill, etc. सर सारी बातें तो यहाँ समझ में आ रही है. प्राइमरी एंट्री होती है, बता दिया. बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, बता दिया. इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कोई ट्रांजैक्शन जैसे ही हुआ आपने रियल टाइम बेसिस पे उसको रिकॉर्ड कर लिया. कोई ट्रांजैक्शन हुआ 1 तारीख को, मैंने 1 तारीख को ही ऑन द वेरी 8th ऑफ से जनवरी, 8th ऑफ जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन, तो उस 8 तारीख को ही मैंने क्या कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया किसमें, अपनी जर्नल एंट्रीज में. तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन या क्रोनोलॉजिकल में. जैसे ही वो चीज हुई, as soon as it occurred we have recorded the same in the journal entries. That's why it is known as chronological order. 8 जनवरी को चीज हो गई, मैं उसे 9 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, that's not a chronological order. तो chronological order क्या करता है कि as soon as the thing happen, as soon as the transaction happen, just record it in the books of accounts. तो chronological order क्या है कि on time basis
ये क्लियर हो गया। तो इसीलिए इसको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी होता है, तीन तीन दो या तीन वो होते हैं जहां पे आपको जो है पता चलता है कि जर्नल की बात चल रही है कि लेजर की बात चली। अगर प्राइमरी बुक कहे तो आपका जर्नल है, अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहे तो आपका जर्नल है, अगर ऑन टाइम बेसिस करे, सॉरी अगर क्रोनोलॉजिकल बेसिस करे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करे तो आप क्या कहेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल लेजर बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड होते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ कौन रिकॉर्ड होता है, जर्नल। लेजर नहीं रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल रिकॉर्ड होते हैं। लेजर नहीं रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल रिकॉर्ड होते हैं। तो इस बात को भी हमें देखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था जर्नल एंट्रीज का जिसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मैंने बता दिया बुक्स ऑफ एंट्री आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड और रिटन इन दिस बुक एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर दैट इज पोस्ट, यानी कि पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज में, फिर उसको जो है क्या किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जर्नल कौन, देखिए एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जो भी जर्नल में आपने एंट्री रिकॉर्ड करी वो एंट्री के फॉर्म में होगी, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। उस फॉर्म में उस एंट्री को रिकॉर्ड करते ही वो क्या करे, वो कहलाई जाती है जर्नल एंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट पोस्टिंग, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में आप डालोगे, उस लेजर में डालने को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। Entry transferred from ledger to different account of entry transferred from journal to different account of ledgers is called, the process is called what, posting. Functions of journal, ये characteristics, advantages, ये सब आप पढ़ना चाहें तो अपने खुद से पढ़ सकते हैं, और limitations और ये सब बेकार की बातें, कुछ लिमिटेशन दे रखी है। फॉर्मेट ऑफ जर्नल ये देख लेते हैं, हालांकि बहुत अभी आपको स्टार्टिंग में 11th में तो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसी फॉर्मेट पे आपको सॉल्व करना है। बट इन रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रैक्टिकल बात करते हो तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली आपको जो सिंपल वहाँ लाइनें वाइनें भी नहीं खींचने को मिलती हैं, बस आपको ये ट्रांजेक्शन दे दिया या एक सिचुएशन दे दी, उसमें से आपको जो जर्नल एंट्री निकालनी रहती है। तो वो उसमें कुछ बस ऐसी खटाखट खटाखट डाल देते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन क्योंकि 11th का कोर्स है तो 11th में ये फॉर्मेट दिया हुआ है तो मैं फॉर्मेट बता देता हूं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका डेट, डेट के बाद आता है पर्टिकुलर्स, देन आफ्टर लेजर फोलियो नंबर, देन आता है आपका डेबिट अमाउंट एंड लास्ट आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। कुल मिला के यही फॉर्मेट पे। डेट मैंने कहा कि डेट यहाँ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है तो डेट का डालना जरूरी है। लेजर फोलियो नंबर ये स्पेसिफिक अगर हुआ तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। लेजर फोलियो क्या होता है, एक तरीके की मैपिंग होती है कि ये एंट्री आपने लेजर में कहाँ पे पोस्ट की है, तो उसके लिए एक लेजर पोस्टिंग नंबर होता है, ये लेजर फोलियो नंबर होता है, जिसकी मदद से आप जो है ट्रेस कर सकते हो अपनी जर्नल एंट्री को, किस में, लेजर अकाउंट में। ठीक है। तो उसका सिंपल से ही मतलब होता है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। यहाँ पे जब आप डेबिट की एंट्री डालोगे तो सपोज आप राम को डेबिट कर रहे हो, तो जो राम होगा, राम के आगे आप 2 नहीं लगाओगे, राम के आगे डेबिट लगा दोगे, और 2 जो 2 में यानी कि 2 रिप्रेजेंट करता है आपको, किसका रिप्रेजेंट करता है, क्रेडिट को। जब भी कोई चीज क्रेडिट होती है वो क्या किससे आती है, 2 कैश। ठीक है। तो यानी कि जो 2 में आता है चीजें वो क्या होती है, वो रिप्रेजेंट करता है आपको क्रेडिट पे, और जो राम होता है वो क्या, मतलब जिसके आगे डेबिट लिखा होता है वो तो ऑब्वियसली डेबिट ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री डालते हैं। बहुत सिंपल है। स्टेप्स ऑफ जर्नल एंड जर्नलाइजिंग, तो स्टेप्स में देखो सबसे पहले जो चीज आती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको रूल पता होना चाहिए। विच पर्टिकुलर अकाउंट
इज टू बी डेबिटेड, ये आपको पता होना चाहिए। कौन चीज कब बढ़ती है, जैसे मैंने कहा था, मैंने दोनों ही रूल पढ़ा है, ट्रेडिशनल भी बताया है, मॉडर्न भी बताया है, लेकिन मैं अब मैं क्या रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक बहुत सिंपल सा लॉजिकल वे दे रखा है थिंक सोचने का, जहां पे उन्होंने बता रखा है कि सब एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़े तो डेबिट होंगे, कम हुए तो क्रेडिट होंगे, एंड वाइस वर्सा फॉर द केस ऑफ लाइबिलिटीज एंड इनकम्स, लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी, कैपिटल और आपके जो इनकम है वो अगर क्या होंगी, वो बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो क्रेडिट होगा और कम होंगी तो डेबिट होगा। वेरी लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग। तो ये मैं प्रेफर भी करता हूं कि जो है बच्चे इसी को ही देखें। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो एक तरीके का फॉर्मेट था, इसी फॉर्मेट पे हम लोग जनरल एंट्री को देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जनरल एंट्री की बेसिक तो बहुत पहले से ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे मैं हर डिटेल में जनरल एंट्री के बारे में बता रहा हूँ। ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो डेडिकेटेड टू जर्नल्स है, तो यहाँ पे हम ईच एंड एवरीथिंग ऑफ जर्नल एंट्री को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यानी डिटरमाइन द अकाउंट दैट आर टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए हमें रूल का पता होना चाहिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, फिर हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलर किस अकाउंट में जाएगा। सपोज कोई पर्सन है, कोई बंदा है, तो वो किस नेचर में है, वो डेटर के नेचर में कि क्रेडिटर के नेचर में है, तो हमें उसको मैप करना पड़ेगा टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट। ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई, दिस पर्टिकुलर पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ डेटर, व्हेन इट इज अ डेटर इट शुड रिप्रेजेंट अ डेबिट बैलेंस। तो लेजर में हम जब जाएंगे तो उसे, उस राम को या उस पर्टिकुलर बंदे को कहाँ डालेंगे, हम उस पर्टिकुलर बंदे को अंडर द हेड डेटर ही डालेंगे। ठीक है, लेजर्स में। ठीक है, नेक्स्ट। तो अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑन द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, जो हमने बहुत पहले स्टार्ट देख लिया है, दोबारा से इन्होंने बताया है, उसको हम अपने पास नहीं देखेंगे। जर्नलिज्म बिकम मोर क्लियर फॉर्म इन इमेजिनरी एंट्री गिवन बिलो, ये कह रहे हैं कि आपको जो है क्लियर हो जाएगी। अच्छा भैया, टोटलिंग, कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड, ये भी आता है, हम ऑन जनरल एंट्री जब देखेंगे तो उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। टोटलिंग, उन जनरल एंट्री का जो भी टोटल होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने फ्रॉम द वेरी बेसिक हमने बात करी थी अकाउंटिंग इक्वेशन में कि अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक वहां पे आ रही है, तो उसको इस वजह से वो मैच नहीं हो रही है, मैप नहीं हो रही है। इसलिए टोटलिंग, और टोटलिंग का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट को आप टोटल करोगे तो उनका बैलेंस इक्वल आएगा। बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है तो कोई एंट्री आपने गलत डाली है। नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड। कई बार ऐसा होता है कि एक पेज पे लास्ट में आने के बाद आपके पास पेज पलटने की जरूरत पड़ जाती है ना, होता है ना कई बार, छोटा पेज है पर एंट्रीज बहुत है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करने के बाद उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं टू द नेक्स्ट पेज या टू द नेक्स्ट वर्कबुक। तो जब हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं दूसरे पेज पे, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस ऑफ डेबिट और बैलेंस ऑफ क्रेडिट, इस तरीके से हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन जनरल वही है। दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो ये सारी चीजें हमने जो ट्रांजेक्शन जितने भी अपने पास बेसिक्स क्वेश्चन देखे थे उनमें कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, बस हमें यहाँ पे एंट्री डालना देखना है। तो पहला एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया छोटा सा, यानी कि कोई दत्ता है, इन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया है अपना, एंड इंट्रोड्यूस द कैपिटल। कितने की, ₹1 लाख। तो यानी कि फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से, जहां हमने कहा था दत्ता है। दत्ता क्या है, दत्ता हमारे वो है जिन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपकी कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या है, ये अपना जो इंट्रोड्यूस हम ये मानेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि कैश या बैंक के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आया है। एक बार को हम कैश मान लेते हैं तो इसे हम क्या करेंगे, कैश में। हमने पहले कहा था कि बिजनेस और बंदा, यानी कि द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग द सम इन द बिजनेस एंड द बिजनेस इटसेल्फ आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। यू कांट से कि जो वो दोनों एक ही हैं, यानी कि उनको एक ही की तरह ट्रीट करेंगे, नहीं, बोथ आर डिफरेंट। यानी कि कैपिटल, तो कैपिटल क्या हो रही है, एक तरीके से हमारी बढ़ रही है।
कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बिजनेस में आ रही है और कैश भी बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में वो कैश भी लेके आ रहा है और कैश किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। व्हेन इट कम्स टू कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारी, हमने बात करी थी कि फॉर लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम रूल इज व्हाट, व्हेन इट इज इंक्रीज दे आर क्रेडिटेड एंड व्हेन दे डिक्रीज दे आर डेबिटेड। तो यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट होगा। कैश, for cash and all kind of assets including expenses we have read what कि when they increase they are debited and when they decrease they are credited। तो यानी कि ये बढ़ रहा है तो हमारे क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट, तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, तो एंट्री बन जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू दत्ता, ₹1 लाख। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एक नरेशन, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, तो यानी कि हमारी एंट्री बन गई डेबिट टू दत्ता। अच्छा, इसमें एक बात मैंने हालांकि वीडियो में डिस्कस कर रखी है प्रीवियस वीडियोस में कि जो पर्सन होता है, किसी का नाम होता है, उसके आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं। अगर हमें अकाउंट लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस डालना पड़ेगा। अपोस्ट्रोफी एस डाल के तब हम अकाउंट लिखेंगे। किसी नेम के साथ डायरेक्ट अकाउंट लिखोगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बीइंग क्या हुआ यहाँ पे, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, यानी कि 1 लाख आया, 1 लाख रुपए आया, कैश था, कैश बढ़ गया और दत्ता। तो इस तरीके से ये एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आप लोग ऑफ एंड जनरल एंट्रीज को क्या करोगे, डेबिट करोगे। फॉर्मेट के हिसाब से डेट नहीं आई यहाँ पे, बट डेट इन्होंने दे भी नहीं रखी है, तो डेट का कॉलम हमारे यहाँ पे ब्लैंक चला गया। ये यहां तक का जो आ रहा है हमारा वो क्या, ये वो आ रहा है आपका पर्टिकुलर्स, जो हमारे ऊपर वाली उसमें सेटिस्फाई हो गया। लेजर फोलियो नंबर भी इन्होंने नहीं दे रखा है, इसलिए लेजर फोलियो का अलग कॉलम हमने नहीं बनाया है। डेबिट अमाउंट आपका ये आ गया और क्रेडिट अमाउंट आपका ये आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से जो है हमारी एक जनरल एंट्री, प्रॉपर जनरल एंट्री क्या हो गई, डल गई। तो जनरल एंट्री इसी तरीके की डालनी है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट हमें समझ में आ गया, बस अब हमें क्या डिस्कस करना है, अब हमें एडवांस लेवल ऑफ जनरल एंट्रीज को देखना है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन आ सकते हैं। ट्रांजेक्शन जो कि हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को टैकल कर रहे हो, हिट कर रहे हो, और हो सकता है कि सिर्फ डेबिट का एक और क्रेडिट का। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक डेबिट और 2 क्रेडिट है, तो उसे 2 फेज जनरल एंट्री बोलते हैं ना। तो उसको भी हम देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास आगे आएंगी चीजें। रीजन ऑफ डेबिट क्रेडिट उन्होंने इसको ब्रीफ किया है बहुत ज्यादा, मैं हम लोग ने पहले ही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बात कर ली है। थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू हमने यहाँ भी दे दिया आपको कि भाई क्यों कोई चीज डेबिट होती है, क्यों कोई चीज क्रेडिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसी तरीके की हमने देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देख रखी हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो फंडा वही है, फंडा जो मेन है मैंने कहा था जो वेरी बेसिक है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपका एक बार रूल्स स्ट्रांग हो गया ना, आप जनरल एंट्री डाल लोगे। जनरल एंट्री तो सिर्फ एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको पुट कर देना है। जो लॉजिक है उस जनरल एंट्री के बिना वो तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही है ना। तो जिसने अच्छे से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ लिया उसे कोई मुश्किल नहीं आएगी जनरल एंट्री डालने में। मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स के बारे में इन्होंने बता रखा है, मैंने भी आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रखा है पहले ही गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होते हैं एक बार छोटा सा हम यहाँ पे भी ओवरव्यू देते हैं। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो होते हैं उस बिजनेस में, जिस बिजनेस में आप हो, अगर उस पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज है जिस उस चीज में आप डील कर रहा है आपका बिजनेस, तो वो आपके बिजनेस के लिए गुड्स हो जाएंगे। मेरा फर्नीचर का काम है तो मेरे लिए फर्नीचर गुड्स हो जाएगा। आपका आपका काम है सपोज मोटर व्हीकल्स का, तो आपके लिए जो फर्नीचर है, वो जो सोफा है वो क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। मैं बिजनेस करता हूं फर्नीचर का, मेरे लिए जो सोफा है वो क्या होगा, मेरा गुड्स होगा। आप मोटर व्हीकल का बिजनेस करते हो, आपके लिए वही सोफा क्या हो जाएगा, आपकी एसेट हो जाएगा। तो यानी कि द थिंग इन विच अवर बिजनेस डील्स, यानी कि हमारा बिजनेस जिसमें डील करता है वो हमारी गुड्स हो जाती है। सिंपल गुड्स मोटा मोटा 4 अकाउंट को अफेक्ट करता है। गुड्स एक तो परचेज अकाउंट, नंबर 2 सेल्स अकाउंट, नंबर 3 परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड नंबर 4
सेल्स रिटर्न अकाउंट। सब परचेज अकाउंट, कोई चीज आपने, कोई गुड्स आपने परचेज किए, जब आप बाय करते हो तो ये अकाउंट में आता है। जब आप सेल करते हो, जब आप गुड्स को बेचते हो तो सेल्स अकाउंट में। परचेज रिटर्न, आपने कोई गुड्स परचेज किया, वो डिफेक्टिव निकला है, आप वो आपके स्टैंडर्डाइजेशन का नहीं है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, परचेज रिटर्न कर दोगे, मैं रिटर्न कर दूंगा उसको। मैंने कुछ गुड्स बेचा, कोई गुड्स बेचा, वो डिफेक्टिव निकल गया, वहां जाके वो टूटा हुआ निकल गया, या उस बंदे के ने जो स्टैंडर्डाइजेशन दे रखा था हमें, उस स्टैंडर्डाइजेशन से वो चीज मीट आउट नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा, हमारे गुड्स हमें वापस कर देगा, तो क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न हो जाएगी। ये कुल मिला के 4 अकाउंट्स हैं जो जो गुड्स आपको अफेक्ट करेंगे। एक और एक्स्ट्रा अकाउंट आता है जो एक तरीके का ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जिसे आप बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक क्या कहता है, देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है। आपने 20,000 रुपए के माल परचेज किए, ठीक है, जिसमें से 10,000 रुपए के माल बेच दिए, जिसमें से 10,000 रुपए के माल बेच दिए, तो यानी कि आपके पास नेट बैलेंस कितना रह गया, नेट बैलेंस आखिर में आपके पास 20,000 रुपए रह गया, वो सॉरी 10,000 रुपए रह गया। अभी जो 10,000 है ये क्या हो जाएगा, एट द ईयर एंड इसे हम क्लोजिंग स्टॉक की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या कहेंगे इसे, क्लोजिंग स्टॉक की तरह। या सपोज इस टोटल से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो आपने गुड्स जो है गुड्स परचेज किए हैं, सपोज 50,000 के गुड्स आपने परचेज किए, 50,000 के गुड्स आपने बेच दिए 20,000 के या 30,000 के, और परचेज रिटर्न जो आई है, यानी कि जो आपने परचेज किया था, जो आपने परचेज किया उसमें आपको वापस भेजना है सपोज 5,000 के, और सेल्स रिटर्न यानी कि जो गुड्स आपने बेचे थे वो आपके पास जो वापस आए वो सपोज 2,000 रुपए के हैं, तो नेट बैलेंस क्या हुआ, सर 50,000 मेरे पास थे, ठीक है, ऐड वाला है, 30,000 चले गए, बचे 20,000, लेकिन सर 20,000 में से भी हमने 5,000 के और वापस कर दिए, तो बचे कितने, 15,000। सर 15,000 कैसे बचे, 2,000 के माल हमारे पास भी वापस आ गया, तो कुल मिला के अब हमारे पास टोटल बैलेंस कितना, हमारे पास टोटल बैलेंस है 17,000 रुपए। यानी कि दिस माइनस दिस एंड प्लस दिस। अच्छा, एक और चीज देखने वाली, सब परचेज का ऑफ एंड नेचर क्या होता है, डेबिट। तो सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। क्यों, ये आपको पता होना चाहिए, इस क्यों का जवाब होना चाहिए आपके पास, नहीं है तो मैं ब्रीफली बता देता हूं। परचेज अकाउंट क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, एंड व्हेन इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं, जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। सेल्स इज अ काइंड ऑफ इनकम, व्हेन इनकम इंक्रीजेस इट इज बीइंग क्रेडिटेड। नेक्स्ट परचेज रिटर्न क्या होता है, अपोजिट नेचर का होता है परचेज से। परचेज डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। सेल्स क्रेडिट नेचर का होता है, सेल्स रिटर्न सेल्स के अपोजिट होता है। सेल्स बढ़ता है तो क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न बढ़ता है तो डेबिट होगा। बहुत सिंपल, कुल मिला के हमें ये लॉजिक को पकड़ के चलना है। लॉजिक को हम पकड़ के चलेंगे तो हमारी ये चीजें बहुत आसानी से होती चली जाएंगी। परचेज गुड्स रुपीज 50,000 अगेंस्ट चेक, गुड्स परचेज हुए तो क्या होगा, एंट्री बताइए। सब परचेज हुआ, परचेज बढ़ेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट। सर कैश से हुए कि चेक से हुए, सर ये चेक से हुए। चेक का मतलब क्या है, बैंक, यानी कि बैंक से हमने परचेज कर रखा है, और जब हमने बैंक से परचेज कर रखा है तो गुड्स हमारे पास क्या हुए, गुड्स हमारे पास आए, कहां से आए, बैंक से। कहां से आए, बैंक से, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको हर उसके बाद रीजन बता रखा है इतना डिटेल में, उस रीजन की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने बहुत ही ज्यादा क्लियर तरीके से अपने पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को पढ़ रखा है। हमें दिक्कत नहीं होगी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में अगर हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रांग है। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन आएंगे, दिस इज द कोर, जो मैंने आपको बताया कोर है, इसको आपने पकड़ लिया एक बार, मॉडर्न क्लासिफिकेशन को पकड़ लिया अच्छे से, आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की प्रॉब्लम खत्म हो गई। आप किसी भी तरीके की कितनी भी एडवांस जनरल एंट्री को बहुत आसानी के साथ कर लोगे, कितनी भी एडवांस हो वो जनरल एंट्री, आप बहुत आसानी के साथ उसको बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है बेसिक एक ओवरव्यू बहुत अच्छी तरीके से मिल गया होगा जनरल एंट्रीज का। तो थैंक यू, इसी के साथ हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस हैं इसमें जो आप देख लीजिएगा, उस जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस किए उसके बाहर से नहीं होगा, तो फिर भी अगर आपको किसी इलस्ट्रेशन में दिक्कत आए
तो आप उसको बताइएगा, उसे यहाँ पे क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सो तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आई टेल यू, बिल्कुल लॉजिक्स को पकड़ के हम चलेंगे। स्टार्टिंग से ही मैंने बता रखा है कि मैं सिर्फ लॉजिक को पकड़ के चलूंगा, चीजें रटेंगे नहीं। जब नहीं रटेंगे तो अकाउंट्स में इंटरेस्ट पैदा होगा, जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो इंटरेस्ट से ही करियर निकलता है। आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट आएगा, आप सीए की तरफ जाओगे। आपको अकाउंट्स अच्छी नहीं लगेगी, आप सीए की तरफ जाओगे ही नहीं। तो दिस इज द वेरी बेसिक ट्रुथ जो हमें पकड़ के चलना है। बेसिक एडवांस करना है, मेहनत करनी है अपने पास और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।